Hello guys, welcome to the second lecture of redox. After the discussion of oxidation number, oxidizing agent, reducing agent and redox reaction, we'll move on to the next part of the chapter. Now this part of the chapter talks about balancing unbalanced redox reaction. An unbalanced redox reaction will be given to you. You need to balance it out there with respect to total number of atoms and with respect to total number of charges on left hand side and right hand side. They should be equal in the end. Now to balance any unbalanced chemical reaction, there are two methods assigned for us. First is the oxidation number method. Second is the ion electron method, also called as half reaction method. We will discuss ion electron method later. We will first try to understand what are the steps involved in oxidation number method to balance an unbalanced chemical reaction. Now first of all, you need to understand the reaction can be carried out in acidic medium, in basic medium and in neutral medium. मतलब रिएक्शन एक पर्टिकुलर pH रेंज पे काम करता है, तो आपको उस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैरी आउट करना है, बेसिक मीडियम में कैरी आउट करना है या न्यूट्रल में कैरी आउट करना है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे. तो सिमिलरली हियर द बैलेंसिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, बट द स्टेप्स विल बी सेम and it will be easy to balance hydrogen atom and balance hydroxide ions. If you remember, acid deals with H plus ions, base deals with OH minus ions. So we will see that. It will be very easy. We'll go step by step and I'll take an example and explain you each and every steps involved in balance a particular chemical reaction via oxidation number method. So, redox reaction we're going to study today. Balancing a redox reaction. The first method is oxidation number method. Okay, now let's take an example and try to understand कि किस तरीके से हम लोग को कितने स्टेप्स यूज करके एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं सिंपल वे में. ओके, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल. लेट्स टेक अ अनबैलेंस रिएक्शन. हम लोग ने एक रिएक्शन लिया है. आई विल पिक अ रिएक्शन. सपोज द रिएक्शन इज Cr2O7-2 dichromate ion. Cr2O7-2 is a dichromate ion. It reacts with another ion. Let's consider the ion as SO3-2 sulfide ion. It forms Cr3 plus chromic ion plus this entire sulfide converts into sulfate SO4-2. It's a green color chromic ion form in the reaction. और एक येलो Cr2O7-2 एक orangish yellow liquid होता है, उसमें आप हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड डालोगे, redox reaction होगा. So this is the unbalanced reaction given to us and we need to balance it. So we use oxidation number method. Now what is the step 1 in oxidation number method? You have to listen to me properly. ये step आप note down करो. What I'm saying, you note it down. Step 1 says you write down the entire chemical reaction, unbalanced reaction. Balance all atom except hydrogen oxygen. मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम बैलेंस करने हैं. प्लस find their oxidation number of each and every atom. Also mark change in oxidation number at left hand side and right hand side with a square bracket with respect to that atom. Change in oxidation number. मतलब step 1 में पहले आप unbalanced reaction लिखो. Write unbalanced reaction. Balance all atom. Leave hydrogen oxygen. Find change in oxidation number for all atoms. मार्क दैट चेंज विद अ स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, 4 रूल्स एक ही स्टेप में आ रहे हैं. तो पहले मैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं. दिस इज द रिएक्शन गिवन. सो आई राइट डाउन योर इन स्टेप 1 Cr2O7-2 प्लस SO3-2 gives Cr3 plus chromic ion plus SO4-2. लिख लिया. Then after writing the reaction, बैलेंस ऑल एटम, लीव हाइड्रोजन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम बैलेंस कर दो. सो क्रोमियम यहाँ पर 2 टाइम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी ट्वाइस कर देता हूँ. सल्फर इज 1 and 1, तो एक ही टाइम बैलेंस है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना. यू हैव टू बैलेंस ऑल एटम
लीव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो सिर्फ क्रोमियम अनबैलेंस था, वो मैंने कर दिया. देन यू फाइंड oxidation number of all atom. Third point in step 1, find oxidation number of all atoms. So let's find out for this Cr2O7 -2. oxygen का always it is -2 oxide. chromium है, find कर लेते, इसका x ले लेते. So 2x, oxygen is 7 times, तो 7 2s are -14 is equal to total charge is -2. So here x becomes +6. So dichromate ions में chromium is +6, oxygen is -2. Now here again oxygen will be -2. sulfur ढूंढ लेते हैं हम लोग अगर oxygen -2 है तो. So let's find for sulfur in SO3 -2. So SO3 -2, oxygen is taken as -2, sulfur is taken as x. 3 into -2 is -6. So x -6 is equal to the charge. So x becomes what? +4. तो here sulfur is +4. Now here मोनोएटॉमिक आयन है तो ये +3 हो जाएगा. सल्फेट SO4 तो ऑक्सीजन इज -2. इन केस ऑफ SO4 -2 इट इज ऑक्सीजन इज -2, तो 4 into -2 is -8. तो x becomes x - 8 is equal to -2, तो x becomes +6. So sulfur changes to +6. So now you mark the change, both point. In step 1, you mark the change in oxidation number with a square bracket. So Cr2O7 -2 में chromium is changing from +6 to +3. So this is an increase in oxidation number. Increase in oxidation number. Sulfate +4 से +6. Sorry, for chromium it is decrease in oxidation number. And for sulfur it is increase in oxidation number. So chromium there is a decrease in oxidation number, मतलब Cr2O7 is undergoing a reduction process and sulfide is undergoing, sulfide +4 से +6 हो रहा है, oxidation number बढ़ गया, मतलब undergoing a oxidation process. तो पहले हम लोग ने मार्क कर लिया. ओके तो स्टेप 1 में यू राइट डाउन द अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, यू बैलेंस ऑल एटम, लीव हाइड्रोजन ऑक्सीजन, find oxidation number of all atoms, then find change in oxidation number and mark it with a square bracket whether there is an increase in oxidation number or there is a decrease in oxidation number. Now what you do in the second step, ध्यान देना second step बहुत important है, first step भी important है, every step is important, उन्हें balancing आएगा नहीं. In second step you find out net increase and decrease in oxidation number. You find net increase and net decrease in oxidation number. Okay, then balance net increase and decrease in oxidation number by multiplying with a suitable factor. बताता हूँ मैं कैसे होगा ये सेकेंड रूल कैसा अप्लाई करना है. You have to find net increase and decrease in oxidation number. So what is the meaning of net increase? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इंक्रीज किसका हो रहा है. तो इंक्रीज हो रहा है सल्फाइड का. सल्फाइड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम +4 to +6. सल्फाइड +4 से +6 हो रहा है. ओके सो फॉर नेट इंक्रीज आई विल फर्स्ट राइट डाउन कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है कि सल्फाइड SO3 -2 से SO4 -2 बन रहा है, वेयर देर इज अ इंक्रीज ऑफ +4 to +6. ओके सो +4 to +6 मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसी रिएक्शन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. क्या है वो? नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली RHS oxidation number minus LHS oxidation number into
maximum atom on one side. See, net increase is for oxidation reaction. In this reaction +4 से +6 हो रहा है सल्फर. So net increase in oxidation number will be RHS oxidation number. सल्फर का RHS oxidation number क्या है 6 +6 माइनस LHS oxidation number क्या हो गया +4, तो 6 - 4 हो जाएगा, इनटू मैक्सिमम एटम ऑन वन साइड. तो सल्फर का मैक्सिमम एटम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, मतलब 1 ही इसका मैक्सिमम एटम, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो मतलब इसका आंसर कितना है हमको 2. दिस इज योर नेट इंक्रीज. अब सिमिलरली फॉर अ रिडक्शन रिएक्शन यू राइट डाउन नेट डिक्रीज. अब रिडक्शन में कौन गया है Cr2O7 - 2 गिव्स यू 2 moles ऑफ Cr3+. ये हो रहा है +6 से +3. ओके, डिक्रीज हो रहा है. सो नेट डिक्रीज फाइंड करना है इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो इट विल बी, ध्यान से देख लेना, LHS ऑक्सीडेशन नंबर माइनस RHS ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, अगर आप एग्जाम में नहीं बता रहे तो भी चलेगा, डायरेक्ट स्टेप लिख देना सेकंड, बट this is for your information, into maximum atom on one side. So if I do LHS, तो 6 - 3 into maximum atom on one side. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब maximum atom ये 2 है on one side, किसी एक साइड दिखना जिसमें यहाँ पर maximum atom हो, तो that is 2 is the maximum atom. मतलब इसका डिफरेंस है 3 3 2 6. So your net decrease for this reaction is 6. Net increase for oxidation reaction is 2. Now you need to balance the net increase and decrease. Net increase और decrease को balance करना है by multiplying with a suitable number. तो reduction के लिए जो net decrease आ रहा है वो 6 आ रहा है. For oxidation the net increase is 2. So if I want to equal this, if I want this to be in the same range, in the same number, if I want to equalize it, so what I'll do to equalize it, I'll multiply net increase with 3. If I multiply this by 3, it becomes 3 2 6. Okay? अगर मैंने इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, मतलब it get equalized, increase and decrease get equalized. So to equalize it, we need to multiply net increase with 3. So what is that net increase? Net increase is for oxidation reaction. So means we need to multiply SO3 - 2 and SO4 - 2 with 3. So I'll write down here to balance net increase and decrease, multiply SO3 - 2 and SO4 - 2. Okay, किससे मल्टीप्लाई करना है with 3. When you multiply it with 3, अब तुम खुद सोचो, think about it. You multiply this with 3, तो this becomes 3. So now maximum atom will be 3. 3 2 maximum atom 1 की जगह 3 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा आंसर. So अभी पूरा इक्वेशन वापस लिखने का. So you multiplied 3. So now the entire equation becomes, therefore what we get, Cr2O7 - 2 plus 3 moles of, multiply this by 3, SO3 - 2 gives 2 moles of Cr3 plus 3 moles of SO4 - 2. Multiply SO4 with 3. Now here the net increase and decrease of their oxidation number is balanced. Now suppose if you just write down this, you know all these steps, आपने steps side पे calculate कर लिया, रफ वर्क कर लिया और ये लिखा, तो यही चाहिए सिर्फ एग्जाम के अंदर. You need this in the second step. Okay, so second step is over. So first step में हम लोग ने मल्टीपल पॉइंट्स लिए थे, सेकेंड स्टेप में हम लोग ने इसको ज़्यादा इलेबरेट किया, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड किया. अब हम लोग जाएंगे इसके थर्ड स्टेप पे. सो आई रब दिस आउट फर्स्ट, जो भी लिखना है लिख लो, और थर्ड स्टेप में नीचे डिस्कस कर देता हूँ. चलो देन आई कंटिन्यू हियर. इन स्टेप 3 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट ए पार्ट, बैलेंस ऑक्सीजन. कैसे? फॉर each extra oxygen add 1 H2O liquid
H2 ऑलवेज लिक्विड केस में होता है, तो लिक्विड लिखने का। बाकी सब के अंदर जो यहाँ पर मेंशन किया है, सिंस ये वाटर में हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर एक्वस मेंशन किया है इस रिएक्शन के अंदर। सो इसके लिए सेकेंड स्टेप में भी जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर सब एक्वस मीडिया आएगा। वाई? बिकॉज ये सारा रिएक्शन वाटर में हो रहा है, बट जब वाटर लिखोगे H2O तो L लिखने का, लिक्विड स्मॉल l। तो फॉर ईच एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एड 1 H2O ऑन अदर साइड। देख लेते हैं कैसे। इफ यू सी प्रॉपरली in the reaction which we obtained in the second step, at the left hand side we have 7 oxygen for dichromate, 3 3s are 9 oxygen for sulfide. So 9 plus 7 is 16 oxygen at the left hand side. Okay, 16 oxygen. थोड़ी देर लिख देता हूँ left hand side पे। Right hand side 3 4s are 12 oxygen. यहाँ oxygen है ही नहीं, 3 4s are 12. तो right hand side पे 12 है, यहाँ पर 16 है, मतलब right hand side पे 4 is less. तो फॉर ईच एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑन वन साइड एड 1 H2 ऑन द अदर साइड। तो यहां पर 4 एक्स्ट्रा है लेफ्ट पे, सो फॉर 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यू एड 4 H2 ऑन द अदर साइड। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स Cr2O7 minus 2 aqueous plus 3 moles of SO3 minus 2 aqueous gives 2 moles of Cr3 plus aqueous plus 3 moles of SO4 minus 2 aqueous plus 4 moles of H2O liquid. So now if you see 3 4s are 12 plus 4 16 oxygen, और left hand side पे 7 plus 3 3s are 9, 16 oxygen. So now oxygen is balanced in this step. For oxygen you add H2 on the other side. Now step 3 में एक और एक आता है, step B, where you need to balance hydrogen. बेसिकली ये जो स्टेप होता है ये एसिडिक मीडिया के लिए होता है। ओके, रिमेंबर इट इज फॉर एसिडिक मीडिया। मतलब ये रिएक्शन बेसिकली अगर एसिडिक मीडिया में दिया है तो ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप सिर्फ इवैल्यूएशन होगा दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट से, मतलब करेक्शन फॉर एटम्स। सो फॉर सपोज रिएक्शन में एसिडिक मीडिया लिख के दिया, तो फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन फॉर एसिडिक मीडिया व्हाट इज द रूल? फॉर ईच extra hydrogen add H plus on other side. H plus means H plus in aqueous media on other side. So let's calculate for this reaction. Left hand side पे Cr2O7 no hydrogen, SO3 no hydrogen, Cr3 plus no hydrogen, SO4 no hydrogen. हाँ, H2O में 4 2s are 8 hydrogen, मतलब राइट पे 8 हाइड्रोजन ज्यादा है तो लेफ्ट पे 8 H प्लस आएगा उसका इक्विवेलेंट। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स Cr2O7 minus 2 plus 3 moles of SO3 minus 2 aqueous plus 3 moles of H plus aqueous gives 2 moles of Cr3 plus aqueous plus 3 moles of SO4 minus 2 aqueous plus 4 moles of H2O liquid. So now hydrogen is balanced here. Oh sorry, I need to add 8 hydrogen here. Why I'm writing 3? 8 H plus. So see, 4 2s are 8 hydrogen, 8 H plus. So now hydrogen is balanced here. So this will be your final step if the reaction is taking place in acidic media. अगर acidic media specify किया है तो reaction यहाँ पर आपका खत्म होगा। अब last step आप step 4 लिखोगे, क्रॉस चेकिंग ऑन बोथ साइड। तो स्टेप 4 यू नीड टू चेक फॉर बैलेंस्ड एटम एंड चार्जेस। रिमेंबर, चेक फॉर बैलेंस एटम एंड चार्जेस। देखो बराबर देखो इस लास्ट रिएक्शन को, लेफ्ट पे 2 क्रोमियम, चलो पहले एटम चेक करते, 2 क्रोमियम, राइट पे 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर। Okay, now 3 3s are 9 plus 7 16 oxygen, 3 4s are 12 plus 4 16 oxygen, 8 hydrogen 8 H plus. All atoms including hydrogen oxygens are balanced. यहाँ पर सारे atoms balanced है total. Okay, left and right पे। फिर आप चेक करो चार्ज बैलेंस है क्या। कैसा चेक करते हैं चार्ज? ये पूरे मॉलिक्यूल पे Cr2O7 has a charge of -2, -2 का चार्ज है। Cr2O7 पे -2 का चार्ज है।
SO3 -2, तो 3 मोल्स है, तो 3 इंटू -2 इज -6. 8H plus, so 8 into +1 is +8. So if you see +8 -6 -2, it becomes 0. मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज हम लोग निकाल रहे हैं, अब वो राइट से मैच होना चाहिए. 2 3s are 6 plus 6. 3 into -2 -6. -6 plus 6 0. मतलब दोनों साइड पे नेट चार्ज 0 आ रहा है. मतलब दोनों जगह पे सेम आ रहा है. इट्स सेम एट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. तो इट मीन्स दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बट what if step 5 is only for बेसिक मीडियम. इफ इट इज मेंशन कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो क्या होगा. सो बेसिक मीडियम में सिर्फ छोटा सा चेंज करना है आपको. इफ इट इज क्लियरली मेंशन कि ये बेसिक मीडिया, सब ये तो एसिडिक मीडिया दिया हुआ है, इसके लिए हमने रिएक्शन या फिनिश कर दिया बैलेंसिंग हाइड्रोजन. बट सपोज what if the reaction take place in basic media. So for basic media you need to add equivalent amount of OH minus with respect to H plus on both side and add H plus and OH minus to form H2O liquid. I'll rub this out. ये पहले स्टेप में यहाँ से निकाल देता हूँ. So I can write it here. What if the reaction is given in basic media? So if the reaction is given in basic media, you need to add equivalent of amount of OH minus on both side. दोनों साइड पे डालना है. But किससे equivalent होना चाहिए? With respect to H plus ions. See properly. Cr2O7 3SO3 -2 8H plus 2Cr3 plus 3SO4 -2 4H2 is a balance equation. हो गया बैलेंस. बट आगे लिख के दिया कि बेसिक मीडिया में हो रहा है, तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप लेना है बेसिक मीडिया के लिए. See properly, in this balanced equation we have 8 moles of H plus on left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे 8 moles of H plus है. सो आपको 8 moles of OH minus दोनों साइड पे डालना होगा. And left hand side पे that 8 OH minus will combine with 8 H plus to form 8 H2O. So see properly what I am doing right now. Cr2O7 minus 2 aqueous plus I'm writing the balance equation. 3 moles of SO3 minus 2 aqueous plus 8 moles of H plus aqueous. Okay, it gives right hand side is 2 moles of Cr3 plus, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम लगेगा इसके लिए. 2 moles of Cr3 plus aqueous plus 3 moles of SO4 minus 2 aqueous plus 4 moles of H2O liquid. So now you have 8H plus at left hand side, you put 8 OH minus ions aqueous at left as well as 8 OH minus ions aqueous at right. दोनों जगह डालो H plus है तो. क्यों? क्योंकि बेसिक मीडिया में OH माइनस दिखना चाहिए, आपको H plus को न्यूट्रलाइज करना है. दैट इज द ओनली रीजन. सो यू पुट OH माइनस, यू ऐड OH माइनस ऑन बोथ साइड इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ H प्लस. लेफ्ट पे H प्लस ज्यादा है, राइट पे H प्लस नहीं है, वो सब कुछ सुनना ही नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है जितना H प्लस दिख रहा है सिस्टम में उतने इक्विवेलेंट अमाउंट OH माइनस दोनों साइड पे ऐड कर दो. सो व्हाट विल हैपन, दिस H प्लस एंड 8 OH माइनस कैन कंबाइन टू फॉर्म 8 H2O लिक्विड. 4 H2O लिक्विड 8 H2O लिक्विड गेट कैंसल आउट कॉमन, क्योंकि 4 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना. तो 8 माइनस 4 4 हो गया. 8 OH माइनस बच रहा है किधर पे, राइट हैंड साइड पे. सो दिस विल बी योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बेसिक मीडिया. एसिडिक मीडिया हुआ तो यहां फिनिश कर देना H प्लस पे. ओके गाइस, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. आपको इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो बैलेंस था वो सेकेंड स्टेप में यही दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेप वाला आपको बता दें. फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको ये रिएक्शन दिखाना है, ये रिएक्शन दिखाना है, और बेसिक मीडिया हुआ तो ये रिएक्शन. मतलब 5 स्टेप के रिएक्शंस ही बताने हैं सिर्फ आपको. वो स्टेप्स लिखने का ऐसा ज़रूरत नहीं. ये सब इलैबोरेशन इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप फाइंड कैसा करेंगे इसमें. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड. आई विल रब दिस आउट, नोट इट डाउन.
Now we'll move on to the second method. See, if you practice this out ना, it becomes very easy. आप practice नहीं करोगे तो नहीं आएगा. So solve in-text questions, solve examples, plus you need to also solve the text back question. Solve it out. और MCQs तो करना ही है. Okay, the second method of discussion, it's you have to divide the equation into two half. That is called as ion electron method. Ion electron method is also called as half reaction method. क्योंकि यहाँ पर आपको दो reactions create करने हैं. One will be your oxidation reaction and one will be your reduction reaction. Okay, so let's talk about the ion electron method. Let's take an example and try to understand how to balance the equation in case of ion electron method. तो हम लोग एक example ले लेते हैं. मैं example आपके text से ही लूँगा. Make it easy. Okay. Example is H2C2O4. This is called as oxalic acid. इसका structure ऐसा होता है COOH, C double bond OOH. Oxalic acid, dibasic acid, gives 2H plus ions. तो oxalic acid in aqueous media combining with MnO4 minus 1. Let it a little big. MnO4 minus 1 in aqueous media to give CO2 and Mn2 plus. CO2 gas, Mn2 plus aqueous. Suppose ये रिएक्शन आपको एसिडिक मीडियम में दिया है. बेसिक मीडियम में आपको पता है क्या करना है, एक स्टेप ही बढ़ाना होता है सिर्फ, एडिंग OH minus 1 बोथ साइड. बट दिस टाइम यू गोइंग टू अप्लाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. सो स्टेप 1 में करना क्या है? In step 1 of this method, we need to find the change in oxidation number. Change in oxidation number सबसे पहले find करना है इसके अंदर. And we need to divide into two, oxidation and reduction reaction. So write unbalanced equation for the redox reaction. Assign oxidation number to all atom in the reactant product and divide the equation into two half, oxidation reaction and reduction reaction. मतलब पहले सबके oxidation number find करो. Find oxidation number. Find change in oxidation number with a square bracket. Divide equation into two, oxidation and reduction reaction. तो step 1 देखो मैं कैसे analyze कर रहा हूँ. Step 1 में I'll write down H2C2O4 in aqueous media plus MnO4 minus 1 in aqueous media gives CO2 gas plus Mn2 plus aqueous. सबके oxidation state find कर दे. Hydrogen with a non-metal is always +1. ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2. खाली पेरोक्साइड में वो -1 होता है. नाउ कार्बन नहीं पता तो साइड पे निकाल लेते हैं H2C2O4 का. ये अगर +1 है तो 2 इंटू +1 इसका टोटल हो जाएगा +2. 4 इंटू -2 इसका टोटल हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0. सो 2x minus 6 इज इक्वल टू 0. सो x हो जाएगा +3. तो यहाँ पर कार्बन हो गया +3. So carbon is here in +3 oxidation state. In MnO4 minus, oxygen is -2. So 4 2s are -8. -8 goes that side +8. +8 -1 it becomes +7. CO2 में ऑक्सीजन -2 है तो 2 इंटू -2 इज -4. तो ऑब्वियसली कार्बन यहाँ पर +4 ही होगा, तभी तो पूरा न्यूट्रल है CO2. और Mn2 +2 हो गया. फाइंड चेंज. तो कार्बन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम +3 to +4. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. मैंगनीज +7 से +2 हो रहा है. सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑब्वियसली एक रिडक्शन रिएक्शन है. तो डिवाइड कर दो. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है? H2C2O4 गिविंग व्हाट? CO2. ये ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन रिएक्शन है MnO4 minus 1 gives what? Mn2 plus. Aqueous. मैं मीडियम लिखना भूल जाता हूँ बट लिखना चाहिए मीडियम. Aqueous and this is gas. See?
So these are the two reaction. You divide the equation into two, half. So we have dividing into two half equation. Therefore it is called as half reaction method. तो दो हाफ इक्वेशन में आपने इसको डिवाइड कर दिया. अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? You have to balance half equation for oxygen by adding H2 on the other side. Then उसके बाद में you have to balance it for hydrogen. बट एक चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि while writing the unbalanced equation for the redox reaction, assign oxidation number to and divide the equation on both side. तो अब करना क्या है इसमें स्टेप 2 के अंदर? स्टेप 2 में you need to first balance all atom except hydrogen and oxygen. फिर उसके बाद में बैलेंस ऑक्सीजन और फिर उसके बाद में बैलेंस हाइड्रोजन. सी सो स्टेप ए ले लेते. यू नीड टू बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में H2C2O4 गिव CO2. ठीक है, तो H2C2O4 दिया हुआ है हमको, वो CO2 प्रोड्यूस करके दिया है. तो CO2 बराबर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के यू हैव टू बैलेंस ऑल दी एटम. सो कार्बन इज 2, तो यहां पर 2 डाल दिया मैंने, तो 2CO2 आ गया, लिटिल बिग. सी कार्बन इज बैलेंस. यू हैव टू बैलेंस ऑल एटम लिविंग व्हाट हाइड्रोजन ऑक्सीजन. चलो अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या बैलेंस करना है? MnO4 वन टाइम है, राइट पे भी वन टाइम है, लेफ्ट पे भी वन टाइम है. सो ऑलरेडी वो बैलेंस ही. MnO4 -1 aqueous gives Mn2 plus aqueous. Simple. Okay, now after this B, balance oxygen. So how will you balance oxygen? For balancing oxygen you need to add H2 on the other side. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वही सेम स्टेप यहां पर लगेगा. For each extra oxygen add 1 H2 on the other side. So oxidation reaction क्या हो गया इसका? H2C2O4 बराबर देखो इसके लेफ्ट पे 4 ऑक्सीजन है, राइट पे भी 4 है, मतलब हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है इसके अंदर, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है 4 and 4. aqueous gives 2 CO2 गैस, ये तो बैलेंस. अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन में लेफ्ट पे 4 ऑक्सीजन, राइट पे कुछ है ही नहीं, तो 4H2 डालना पड़ेगा. तो F gives Mn2 plus aqueous plus 4 moles of H2O liquid. हो गया, दोनों जगह ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. नो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में यू नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन. ओके, सो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं. चलो, हाइड्रोजन का रूल क्या है? फॉर ईच एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड H+ ऑन अदर साइड. तो अभी अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखोगे तो H2C2O4 है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है लेफ्ट पे, राइट पे कुछ नहीं, तो राइट पे 2 H+ डालना पड़ेगा. तो H2C2O4 एक्वेस, वही सेम रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, 2 CO2 गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ H+ एक्वेस. सी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. रिडक्शन रिएक्शन लिखूंगा मैं, रिडक्शन इसके नीचे लिख देता हूं क्योंकि फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बाद में ऐड करते हैं, पहले रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं. तो रिडक्शन में क्या है? MnO4 -1 एक्वेस, लेफ्ट पे 4, राइट पे देखो 4 2 8 हाइड्रोजन है, मतलब लेफ्ट पे 8 H+ आएगा. सो मैं लिख देता हूं MnO4 -1 aqueous plus 8 H+ aqueous gives Mn2 plus aqueous plus 4 H2O liquid. मतलब स्टेप 1 में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिवाइड कर दो इनको 2 हाफ में. फिर स्टेप 2 में सारे एटम बैलेंस कर दो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन. स्टेप 2A में 2B में बैलेंस ऑक्सीजन, 2C में बैलेंस हाइड्रोजन. एंड यू नो द सेम रूल. फॉर ऑक्सीजन ऐड 1 H2O liquid on the other side. For hydrogen add H+ aqueous on the other side. So now we have balanced hydrogen, we have balanced oxygen, we have balanced all the atoms right now. अब चार्ज बैलेंस करना है. कैसे? Let's try to understand. Okay? चार्ज बैलेंस करने के लिए you need to take help of electrons. आपको इलेक्ट्रॉन्स का हेल्प लेना है चार्ज बैलेंस करने के लिए. प्राइमरी रूल क्या था? प्राइमरी रूल था, डेफिनेशन ये था कि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन एट राइट हैंड साइड, इन रिडक्शन रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड. तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज ऐड करने हैं ताकि दोनों साइड के चार्ज इक्वल हो जाए. सो व्हाट आई विल डू हियर,
I'll write down in step 3 balance charge by adding required electrons. मतलब कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. ऑफ कोर्स क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे राइट हैंड साइड में, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे. सो नाउ इफ आई राइट डाउन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट बिकम्स H2C2O4 aqueous gives 2 CO2 gas plus 2 moles of H plus aqueous plus electron. छोड़ दिया लिख के क्योंकि राइट हैंड साइड पे आएगा इलेक्ट्रॉन. इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए. अब बराबर देखो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज जीरो है. लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज है ही नहीं, जीरो है. राइट हैंड साइड पे भी जीरो करना पड़ेगा. कैसे? CO2 इज जीरो, 2 इंटू +1 तो ये +2 होता है. तो +2 को जीरो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन -1 है. सो इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? दिस नेगेटिव चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 2. सो 2 इंटू -1 इज -2. सो -2 एंड +2 नेट बिकम्स व्हाट? 0. सो मतलब ऑक्सीडेशन के लिए मैंने राइट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किया? तो रिडक्शन रिएक्शन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स देखो हमेशा याद रखना, व्हाइल राइट डाउन ऑक्सीडेशन रिडक्शन यू फर्स्ट प्लेस द इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट पे आता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे आता है. अब रिडक्शन रिएक्शन लिख रहा हूं मैं. रिडक्शन रिएक्शन MnO4 -1 एक्वेस 8H प्लस एक्वेस. अब ये रिडक्शन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया मैंने. गिव्स Mn2 प्लस एक्वेस प्लस 4H2O लिक्विड. ठीक है. अब सी राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड का चार्ज क्या है? +2. ये तो जीरो है, H2O चार्ज इज +2. तो लेफ्ट पे भी आपको +2 ही लेके आना है. कैसे लेके आओगे? दिस इज -1, दिस इज +8. तो -1 + 8 मतलब हो गया +7. तो +7 से तुम जब 5 रिमूव कर दोगे, -5 कर दोगे तो वो +2 में आ जाएगा. तो मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करने का? 5 से. क्यों? क्योंकि 5 इंटू -1 इज -5. 7 - 5 बिकम्स वॉट? +2. और +2 लेफ्ट पे, +2 राइट पे, मतलब चार्ज लेफ्ट राइट पे बैलेंस हो गए. ओके. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू राइट डाउन इलेक्ट्रॉन एट राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन. नाउ इन दिस स्टेप, और आई टेक अ नेक्स्ट स्टेप. चलो नेक्स्ट स्टेप में, इन स्टेप 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. कैसे बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए? देखो ऑक्सीड बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल नंबर. ऑक्सीडेशन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 मोल्स, रिडक्शन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 मोल. मतलब इफ आई मल्टीप्लाई oxidation reaction with 5 and reduction reaction with 2, so 5 2s are 10 electron, 2 5s are 10 electron. Electron will be balanced. So if you want to balance a electron, then multiply it with a suitable number. So हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? suitable number के लिए सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि we get a proper end result. So to balance electron, I can write down for this reaction, multiply oxidation reaction with किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, फैक्टर ऑफ 5, एंड रिडक्शन विथ फैक्टर ऑफ 2. तो उससे क्या होगा? अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 2 से 10 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 5 से 10 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. So you have to balance electron for oxidation reduction reaction and add both equation. चलो करके देख लेते हैं. चलो पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 5 से. So it becomes, oxidation reaction becomes 5 moles of H2C2O4 aqueous gives
10, 5 2 ज़ा 10, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 2 से कर रहा हूँ, तो 5 moles ऑफ दिस, ना दिस इज 5 2 ज़ा 10 moles ऑफ CO2 गैस प्लस 5 2 ज़ा 10 moles ऑफ H प्लस एक्वेस प्लस 10 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब रिडक्शन रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करना है. MnO4 माइनस एक्वेस प्लस 2 8 ज़ा 16H प्लस एक्वेस प्लस 2 5 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन gives 2 moles of Mn2 plus aqueous plus 8 moles of H2O liquid. ठीक है, अब दोनों में से कॉमन चीज लेफ्ट और राइट पे कैंसिल करो. 10 moles of electron at left hand side, 10 moles of electron right hand side, कैंसिल. लेफ्ट राइट, एरो के लेफ्ट हैंड साइड दोनों रिएक्शन के और एरो के राइट हैंड साइड पे कॉमन चीज कैंसिल कर देने का. अब 16H प्लस लेफ्ट पे है और 10H प्लस राइट पे है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 6H प्लस बच जाएंगे लेफ्ट पे. और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं. सो अब दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन कैंसिल करने के बाद. सो व्हाट यू विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या आ जाएगा, 5 moles of H2C2O4 aqueous plus 2 moles of MnO4 minus aqueous plus 6 moles of H plus aqueous. हो गया लेफ्ट. अब राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, नीचे लिख देता हूं मैं. 10 moles of CO2 गैस प्लस Mn2 plus 2 moles of Mn2 plus aqueous plus 8 moles of H2O liquid. Okay, now cross check it whether it is correct or not. तो स्टेप 5 में क्रॉस चेक कर लेना है. कैसे, सबके एटम्स देख के. कार्बन देख लेते पहले. 5 2 ज़ा 10 कार्बन एट लेफ्ट हैंड साइड, 10 कार्बन एट राइट हैंड साइड. हाइड्रोजन 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 16, लेफ्ट पे 16 है, राइट पे 8 2 ज़ा H2O है ना ये, तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, बैलेंस. ऑक्सीजन 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8 28, लेफ्ट पे 28 ऑक्सीजन, राइट पे 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 8 28. गुड. Mn 2 moles ऑफ Mn, 2 moles ऑफ Mn. गुड. तो एटम सारे बैलेंस हो गए ना, एटम्स आर बैलेंस. अब चार्ज बैलेंस कर दें, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंटू -1, KMnO4 -1 है, तो 2 इंटू -1 इज -2, 6 इंटू +1 इज +6, -2 + 6 होता है +4, तो लेफ्ट पे +4 है, राइट पे 2 2 ज़ा +4. इवन चार्ज इज बैलेंस. सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो स्टेप 5, चेक फॉर बैलेंस एटम, मतलब क्रॉस check it and charge. But what if the reaction take place in basic media? I'll rub this out. वही सेम अप्लाई कर दें तो वो स्टेप 5 बन जाएगा. फिर बेसिक मीडियम का रूल क्या है? फॉर ईच एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एड OH माइनस एक्वस ऑन बोथ साइड. तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन था. इसमें मुझे H प्लस 6 मोल्स ही दिखता है, तो मुझे 6 मोल्स OH माइनस दोनों साइड पे डालना पड़ेगा. तो बेसिक मीडिया में अगर ये रिएक्शन लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ H2C2O4 एक्वस प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस एक्वस प्लस 6 मोल्स ऑफ H प्लस एक्वस प्लस 6 मोल्स ऑफ OH माइनस एक्वस. ये डालना पड़ेगा. अच्छा, क्या ये हमको दे रहा है? इट गिव्स व्हाट? 10 मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ Mn2 प्लस एक्वस प्लस 8 H2O लिक्विड प्लस 6 OH माइनस एक्वस. दोनों साइड पे डालना पड़ेगा. नो 6H प्लस 6 OH माइनस विल फॉर्म 6H2O. तो ये कैंसिल हो गया. 6H2O 8H2O, तो यहाँ पर बचा 2H2O. So now this will be your balance equation for basic media. The rest everything is same. So copy it down. जो भी करना है इसमें से कॉपी कर लो. And I hope you understood this, both the balancing part. Try to solve the solved examples
इन योर टेक्स्ट बुक प्लस टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस, ये सॉल्व करो प्लस द एमसीक्यूज. एंड सर लास्ट पार्ट होगा अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय.